Hi class. So in the last few classes, we have seen what is the meaning and essence of an essay. We know what is the demand of UPSC. Then we have seen salient features of an ideal essay. We know what are those features which must be there in an ideal essay to get good marks. So in this lecture 4, we are going to start how to approach introduction, how to write a good introduction, what is the meaning of an ideal introduction. So before that, we will see what exactly is this introduction in steps of essay writing. So whenever we start essay writing, we have three major steps. The first step is selection of topic, then draft of essay, and then execution, actual writing. Now when we say selection of topic, this is again one of the most vital steps of essay writing, because once you choose any topic, there is no reverse gear. एक बार आपने कोई टॉपिक को चूज कर लिया तो वापस आप नहीं जा सकते हैं. सो बेस्ट आइडिया इज वे ऑफ एलिमिनेशन. फाइन, यानी आपको ऐसे के टॉपिक्स मिले, सबसे पहले आप उन एसेस को आउट कीजिए जो आपको लगता है कि इन एसेस पे तो मैं कुछ भी नहीं जानता, आई एम टोटल ब्लैंक. से फॉर एग्जांपल यू डू नॉट नो मच अबाउट IR और टेक्नोलॉजी, तो उन एसेस को पहले आप आउट कर दीजिए. जितने बचे उसमें से शॉर्टलिस्ट कर दीजिए. शॉर्टलिस्ट करने में और टॉपिक को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना. मुझे लगता है कि एक ऐसे टॉपिक आपको अगर सेलेक्ट करना है तो हार्डली 2 से 3 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है. दैट दिस इज माई टॉपिक एंड ऑन दिस आई एम गोइंग टू राइट माई एसे. एंड वॉट एवर टॉपिक यू चूज, डू नॉट कम बैक. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टॉपिक को चूज कर लेते हैं, चूज करने के बाद जैसे ही ड्राफ्ट करना चालू करते हैं उनको लगता है कि नहीं, मैंने शायद गलत टॉपिक चूज कर लिया, और वापस से वो टॉपिक सिलेक्शन की तरफ भागते. ऐसा नहीं करना है. जस्ट practice yourself and make sure that whatever topic that you are using, that should be your final topic and you are not coming back from that topic. So selection of topic is the first step. Second topic is draft of keywords. So this is again a standard practice. Whenever you select a topic, you just keep on writing whatever comes into your mind. You have to write only keywords, key technical words. You are not going to make any sentences. एक बार आपने टॉपिक को सेलेक्ट किया, उस टॉपिक में आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं, जितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, उसको आपको अपने ड्राफ्ट में जो है वो लिखते जाना है, और इसके बाद उन्हीं कीवर्ड्स को आपको कहां उतारना है, अपने एसे में. अब ये कीवर्ड्स का क्या मतलब है? कीवर्ड्स का ऐसे मतलब है जो कि की आइडियाज हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें ऐसे लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑलराइट, so when we write artificial intelligence, one thing that comes into my mind is use of artificial intelligence in social media. So first keyword will be social media, then government regulation, word लिख दो क्या, regulation, then technology, then utility, then harm effects. इस तरह से जितने भी आपके दिमाग में keywords आते हैं, आपको उस ऐसे में लिख देना है. keywords कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमारे पास में एक सेपरेट क्लास है, वो हम करेंगे जब हम बॉडी पे आएंगे. अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि कीवर्ड्स जो है वो सेकंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप क्या है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ योर राइटिंग. नाउ एवरी एसे हैज 3 पार्ट्स. फर्स्ट वी हैव बॉडी, देन फर्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन, देन वी हैव बॉडी, एंड देन वी हैव कंक्लूजन. ऑलराइट, इंट्रोडक्शन इट इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ योर एसे. फाइन, और वी कैन से अराउंड 100 वर्ड्स, one para. Conclusion again 10% of the essay, one paragraph. And when we say the body is 80% part of your essay. This is the main flash, main substance of your essay, and it is of around 8 to 10 paragraph. तो ये आपका पूरा का पूरा एक essay का structure होता है. Introduction, body, conclusion, and we start with introduction. So this particular lecture we are going to see how to approach introduction, how to write a good introduction. Now let us see what are features of an ideal introduction. एक ideal introduction होता क्या है, और हम इस बात को समझेंगे कि introduction का आखिर मतलब क्या है. So introduction, as the name suggests, and you must have heard the famous saying, first impression is your last impression. So introduction is something which gives the very first impression to the examiner. एग्जामिनर के पास सबसे पहला इंप्रेशन आपका एसे का इंट्रोडक्शन से ही आने वाला है. इंट्रोडक्शन को देखने के बाद में पूरे के पूरे एसे का फ्लेवर एग्जामिनर के समझ में आ जाता है.
So introduction is like, we can say, index of a book, it's like title of a book, or we can compare introduction with a movie. तो मूवी का जैसा ट्रेलर होता है वैसे इंट्रोडक्शन है. सो ट्रेलर क्या है, मूवी का एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट होता है, और ट्रेलर में पूरी मूवी का क्या होता है, पूरी मूवी का फ्लेवर आपको ट्रेलर में दिखाया जाता है. यानी कि पूरी मूवी है, मूवी में लीड हीरो कौन है आपको इंट्रोडक्शन में, ट्रेलर में दिख जाएगा. विलेन कौन है आपको ट्रेलर में दिख जाएगा. दोनों के बीच में किस बात को लेकर के जंग है ये भी आपको ट्रेलर में दिख जाएगा. मूवी के मेन सॉन्ग्स कौन कौन से हैं, मेन डायलॉग्स कौन कौन से हैं, मेन थीम क्या है पूरी मूवी का, ये आपको कहाँ मिल जाता है, ट्रेलर में मिल जाता है. लेकिन मूवी का क्लाइमैक्स क्या है ये कभी भी ट्रेलर में नहीं मिलता है, बिकॉज फॉर क्लाइमैक्स वी हैव ए सेपरेट थिंग दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन. सो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एकदम याद कर लो, जिस तरह से मूवी का ट्रेलर होता है वैसे इंट्रोडक्शन होता है पूरे के पूरे बॉडी का. यानी जो ऐसे हम लिखने वाले हैं उसका फ्लेवर अगर कुछ होता है तो वो इंट्रोडक्शन होता है, बट वो सिर्फ फ्लेवर होता है. फाइन. यानी कि मूवी में जिस तरह से फाइट सीन का सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ दिखाया जाता है, पूरा फाइट नहीं दिखाया जाता, उसी तरह से इंट्रोडक्शन में भी आपको सिर्फ उसका एक झलक दिखाना है, ग्लिम्पसेस आने चाहिए, उसमें फ्लेवर आना चाहिए. पूरा का पूरा कंक्लूजन और बॉडी का पार्ट इंट्रोडक्शन में जो है वो नहीं आना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ एन आइडियल इंट्रोडक्शन. सो फीचर नंबर 1 ऑफ एन आइडियल इंट्रोडक्शन इज इट शुड set the tone of the debate. Why debate? Because we have seen essay is what? An art of articulation where we have to convince our reader and we basically have to write our own story, our own argument. Alright? So जो theme है आपका introduction का, वो आने वाले theme का जो tone है उसको बताएगा. Fine? So that is like you should set the motion. Set into motion what? The theme of your essay, the argument of your essay. इंट्रोडक्शन में लिख दिया is AI good or bad. समझ में आ रहा है कि आप आने वाले समय में AI के बारे में गुड और बैड दोनों चीजों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. कैन US India friendship be the defining friendship of coming days? So it shows that in the subsequent paragraph you are going to redefine the relationship between India and US. So this is the meaning of introduction, which should set the tone of debate into motion. Second, don't start introduction with typical style of GS mains. So in GS mains or even in optional, we start with typical writing, that is we start with a definition. That is not recommended in introduction. Introduction में definition ही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए. क्या होना चाहिए हम देखेंगे अभी. Next, don't jump to conclusion or solution. That means introduction should be introduction. Just I have explained you like trailer of a movie. मूवी का सब कुछ दिखाना है बट क्लाइमेक्स आपको नहीं दिखाना है. सो यहाँ पर भी आप सब कुछ बताइए that what you are going to discuss in your subsequent paragraph, but you should not show the climax. क्लाइमेक्स को यहाँ पर नहीं बताना है. क्लाइमेक्स के लिए आपके पास क्या है, कंक्लूजन है. सो whatever solution you are going to suggest, whatever way out you are going to suggest, that should not be in the introduction. Otherwise पूरा का पूरा ऐसे का जो एसेंस है वो खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका आर्गुमेंट के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा. आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बैड है. ये कंक्लूजन आपने पहले ही बता दिया. तो अगर आपने पहले ही बता दिया AI इज बैड, सो व्हाट इज लेफ्ट इन रीडिंग योर एसे? सो द मीनिंग ऑफ रीडिंग एसे इज ओनली दैट यू आर गोइंग टू कन्विंस द रीडर. आप रीडर को कन्विंस करते जा रहे धीरे 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 कि क्या मेरा कंक्लूजन होने वाला है. सो कंक्लूजन को आपको वहां पर नहीं बताना. डोंट जंप टू द कंक्लूजन. देन ऑब्वियसली इट शुड बी इंटरेस्ट अराउजिंग. ऐसे में बहुत एक अच्छा इंटरेस्ट जो है तभी बनता है जब आपका इंट्रोडक्शन में भी इंटरेस्ट आएगा. सो राइट डाउन एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड अराउजिंग इंट्रोडक्शन विच मेक्स द एग्जामिनर द रीडर टू रीड मोर एंड मोर. एक इंटरेस्ट जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में ही जगा देना है. कैसे जगाना है हम देखेंगे अभी. देन इट शुड कंटेन द मेन थीम ऑफ द टॉपिक. ऑलराइट. सो व्हाटएवर टॉपिक you have selected for your essay, make sure that introduction should contain that topic also. उस टॉपिक के आसपास की चीजें आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस करनी है. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक का डिस्कशन वहां पर नहीं है. यू आर गोइंग टू राइट ऑन whether AI is good or bad, and you have not even discussed the term AI in your introduction. You are discussing something else of a story of Europe and America,
that will not give you a good marks. The main theme of essay, the central theme of essay, the topic of essay must be sprinkled in the introduction. Then within word limit, too long introduction not recommended, too short introduction not recommended. Ideal length of introduction should be around 80 words. 80 words के आसपास का अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, so that is well recommended. So you should always stick to the word limit of introduction. Now let us see what is the meaning of an ideal introduction, how to approach the introduction. So I am going to tell you 7 approaches to introduction. Fine. We are going to discuss in this class how to write introduction in 7 different forms, 7 different shapes, 7 different types. But based on my experience, based on whatever topics I have seen, how rankers write, as per my experience, there cannot be something beyond these 7 approaches. इस 7 अप्रोच के बाद जो चीज़ें होंगी वो इसी के आसपास ही घूमेंगी. ब्रॉड लेवल पे 7 तरह से इंट्रोडक्शन को हम जो है बांट सकते हैं. क्या क्या है हम एक एक करके देखते हैं, so that you can keep in your mind how to write a good introduction. The very first is, and the most popular way is, start with a quotation. You select the topic and recall any quote that is related to that topic and just write that quotation and start your essay with a beautiful quotation. This is the most popular way to start introduction. Majority of students would start from this style only. They would start with a quotation. But I have told you many times, if you know quotation, if you know relevant quotation, then only use quotation, otherwise avoid. This is not a thumb rule. This is not something which is not avoidable. कई लोगों को लगता है कि अगर कोटेशन नहीं आ रहा है तो ऐसे कोई स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसलिए ज़बरदस्ती के कोटेशन आपको नहीं डालने हैं. मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या है, उनको लगता है नहीं कोटेशन से तो स्टार्ट होना ही चाहिए, तो टॉपिक कुछ है, उनका कोटेशन कुछ और ही चला गया है. ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंप्रेशन एंड बिफोर इंट्रोडक्शन दैट कोटेशन इट इज इवन द फोरमोस्ट इंप्रेशन. फाइन. सो यू शुड नॉट डाइल्यूट दैट. उसको आपको खराब नहीं करना है. कोटेशन आता है तो लिखिए, नहीं आता मत लिखिए. मैंने कुछ कोटेशंस के एग्जांपल्स उठाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कोटेशन कैसे लिखना है, रेलेवेंट कोटेशन कैसे लिखना है. द फर्स्ट इज, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. एक नदी के पानी में आप दोबारा जो है नहीं जा सकते हैं. सो वी कैन ड्रॉ कंपैरिजन ऑफ दिस टॉपिक. सो दिस टॉपिक वांट्स टू से दैट टाइम इज नॉट सेम. मैंने इसको टाइम के रूप में देखा है. आप इसका पैरेलल और भी ड्रॉ कर सकते हैं. आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक जैसी नहीं रहती. आप इसको कह सकते हैं इन्वायरमेंट कभी एक जैसा नहीं रह सकता है. आप इसको कह सकते हैं एज कभी एक जैसा नहीं रह सकता है. सो वी हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. एज पर माई इंटरप्रिटेशन आई वुड इंटरप्रेट दिस एज टाइम. विथ टाइम आई विल कंपेयर दिस रिवर विथ टाइम एंड यू कैन नॉट बी इन द सेम सिचुएशन इन द सेम टाइम. फाइन. आप एक समय पे हमेशा के नहीं रह सकते. चीजें परमानेंट नहीं है. सो इससे मिलता जुलता कोटेशन डाल दिया. द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज हेराक्लिटस. बिल्कुल रेलेवेंट कोटेशन है, क्योंकि ये मतलब ये क्या कह रहा है, चेंज इज समथिंग विच इज परमानेंट. चेंज इज समथिंग विच इज नॉन अवॉइडेबल. चेंज होगा ही होगा. फाइन. और वही ये भी कह रहा है कि हमेशा समय क्या है, बदलेगा. एक और कोटेशन डाल सकते हैं इसमें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन एनॉनिमस. दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग, वी ऑल नो इट. इसको भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो व्हाट रेलेवेंट. Then, what is research but a blind date with knowledge? These are actual topics of UPSC. Okay, मैंने actual questions उठाए UPSC के. What is research but a blind date with knowledge? So research क्या है? Blind date. Blind date का क्या मतलब है? You do not know your date. आप interaction. Date means interaction. आपको पता ही नहीं है कौन से नॉलेज सही है, कौन सा नॉलेज गलत है. इसलिए आप हर तरह के नॉलेज से क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं. You are picking all the knowledge. You want to see which model of democracy is best. You are not thinking in your mind that only Indian democracy is the best model. But you want to search.
you want to research which model of democracy is best. So obviously you will go on scanning, studying all the democratic setup of world. Even you are going to study democratic setup of China or Ukraine, even of North Korea, what kind of setup they are having, to reach to the conclusion what is truth. with कि हमें तो बताया गया डेमोक्रेसी अच्छा है अच्छा है अच्छा है, पर क्या डेमोक्रेसी वाकई में अच्छा है? लेट अस कंपेयर modern democracy with so-called non-democratic countries like North Korea or even China. So research is blind date, यानी हर तरह के नॉलेज आपको आने चाहिए. बहुत सिंपल यहाँ पर हम इसको उठा सकते हैं, ये वाला हर एनसीईआरटी बुक्स में आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में ये टॉपिक दिया रहता है, ये कोट है, लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड, दैट मीन्स वी शुड टेक नॉलेज फ्रॉम ऑल द साइड्स. ऋग्वेदा कोटेशन बन गया. देन I know that I know nothing, Socrates, famous saying of Socrates, I know that I know nothing, and that's why when I know that I know nothing, I will keep exploring all the knowledge system of world to reach to precise knowledge or the correct knowledge or the real truth. Alright, then an investment in knowledge pays the best interest, Benjamin Franklin. What does it mean? It means कि knowledge को जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उसको टाइम देंगे, उतना ज़्यादा और नॉलेज हमें आएगा, इंटरेस्ट के साथ आएगा. हर नॉलेज के बाद एक नया नॉलेज आता है. तो ये 3 कोटेशंस इसमें क्या है, रेलेवेंट है. नेक्स्ट, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन यूज हियर द फेमस कोटेशन ऑफ अब्राहम लिंकन. फाइन, व्हाट इफ यू वांट टू चेक द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, गिव हिम पावर. वेरी रेलेवेंट, बिकॉज अब्राहम लिंकन सेज व्हाट, कि पावर मिलने के बाद आदमी का रियल कैरेक्टर मालूम चलता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है. सो विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक सेंस. देन इसको भी डाल सकते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट, ये भी डाल सकते हैं. सो हम देख सकते हैं दैट ऑल द कोटेशंस व्हिच वी हैव रिटन आर रेलेवेंट. सो ओके, सो merely putting quotation is not important, but quotation must be relevant. ऑलराइट, यहाँ कुछ और कोटेशंस मैंने लिखे हैं. यू कैन जस्ट पॉज द स्लाइड एंड यू कैन यूज, यू कैन सी, यू कैन योरसेल्फ. सो फर्स्ट अप्रोच टू एसे इज थ्रू कोटेशन. सेकंड अप्रोच, एक शॉर्ट स्टोरी लिख दो. आपने देखा होगा हिंदू में भी कई बार एक छोटी सी कहानी, एक पैराग्राफ की कहानी आती है. कहानी सुना तो कहानी सुनकर इंटरेस्ट जग गया, क्या बताने वाला है ये. या फिर आपने कई स्पीकर्स को सुना होगा, स्पीकर्स किसी कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं. सो कहानी के साथ जब स्टार्ट किया तो क्या होता है, हमें लगता है कि कहानी के बाद और क्या बताने वाला है. ऑलराइट, सो बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी. दिस इज आवर टॉपिक एंड आई वांट टू स्टार्ट दिस टॉपिक नॉट फ्रॉम कोटेशन, बट आई वांट टू स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी. So this is short story. Let us read this story. The story is, the great Socrates was against democracy. He brought a fiction where he compared a sweet seller and a doctor both contesting election. According to Socrates, in such contest, sweet seller is bound to win as democracy works on public appeasement and people are not so well informed in a democracy. In simple words, Socrates supported the idea of democracy with condition of presence of well-informed citizens, and without a shadow of doubt, media is one of the biggest tools in creation of well-informed citizens. So you see, I have discussed this story also before also in class. So this is a story of Socrates, and this is very relevant with this quotation. Why? Because we are going to discuss biased media, and here Socrates is against democracy, because he feels people are not well informed, and whose responsibility is to inform people? It's responsibility of media, and that's why Socrates is connecting media with the quality of democracy. You see, in this introduction, I have not concluded anything. मैंने conclude नहीं किया है कि biased media democracy पे कितना threat कर रहा है. यही ऐसा ही introduction होना चाहिए जहां पर आपको conclusion पे jump नहीं करना है. But I have linked media and democracy. So this introduction makes a sense that in subsequent paragraph I am going to elaborate this
nexus or this linkage between media and well-informed citizens or media and democracy. So this is a way where if you recall a short story, you can write this. अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ऐसा शॉर्ट स्टोरी हम कैसे निकालें? तो कुछ नहीं है, जितने भी थीम्स है आपके पास में, अलग अलग थीम्स पे ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं, कभी फिलॉसफी पे, कभी टेक्नोलॉजी पे, आईआर पे, आपको शॉर्ट स्टोरीज, चार पांच शॉर्ट स्टोरीज हर टॉपिक पे तैयार करना है, एंड देन यू कैन राइट अ वेरी गुड essay. Let us move to the next approach. One more story. Again, I have discussed this story also before in class. Story of Adi Shankaracharya when he encountered a Chandala in Banaras. Fine. So we can narrate this story with this topic. Your perception of me is a reflection of you. My reaction is an awareness of me. What does the topic mean? ये टॉपिक ये कहता है कि हमें सामने हमेशा वही चीजें दिखते हैं जैसे हम खुद हैं। यानी अगर मैं किसी को बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस सबूत के सामने वाले को मैं करप्ट समझ रहा हूं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी करप्ट हूं, या मैंने सामने वाले को झूठा समझ लिया कि शायद झूठ बोल रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब मैं झूठ खुद बोलता हूं। तो नॉर्मली ऑनेस्ट लोगों को आप देखेंगे तो ऑनेस्ट लोग सामने वाले को भी ऑनेस्ट समझते हैं पहली नजर में। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट लोगों को अपना रिफ्लेक्शन सामने दिखता है, ऐसा हमेशा होता है। अब इस कहानी को अगर हमें स्टार्ट करना है तो एक तो फिलोसफिकल बेस्ड कहानी है ये। सो बेस्ट स्टोरी विल बी स्टोरी ऑफ आदि शंकराचार्य। यू कैन जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन रीड। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस स्टोरी। So this story will be linked to this particular topic and this can set the tone of debate. Third approach, you can start with quotation. You can start with a short story, or you can start with some extracts from some book. आप किसी बुक के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, या उस बुक के किसी बीच के पैराग्राफ को आपने निकाल दिया तो भी चलेगा। सो अ बुक वॉज रिटन रिसेंटली, इन दैट बुक सो एंड सो वॉज गिवन। इस तरह सब चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी बुक का पूरा समेशन ही बता दिया। महात्मा गांधी इन हिज बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ब्ला ब्ला ब्ला, आपने एक पूरा का पूरा लिख दिया। अम्बेडकर इन हिज बुक इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने कुछ जो है वहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से अगर आप बुक लवर हैं, ऑब्वियसली यूपीएससी एस्पायरेंट्स बुक लवर्स होते ही हैं, तो उस बुक के क्रक्स को आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन की जो किताब है, वहाँ से उठा करके आप डाल सकते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की बुक है, वहाँ से कुछ आप डाल सकते हैं। यानी किसी भी बुक का मेन एसेंस हो या उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर हो, उस क्रक्स को आपने उठाकर डाला, तो यहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, इज स्टिंग ऑपरेशन एन इन्वेजन ऑन प्राइवेसी? दिस इज टॉपिक एंड वी कैन राइट दिस फ्रॉम द फेमस, वी कैन स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फेमस बुक 1984. So let's read this extract. George Orwell, in his famous fictional novel 1984, portrayed a system where everything was under control of totalitarian state. Today, the famous phrase of novel, "Big Brother is watching you," seems to be a reality and has become a phase of concern where there appears to be multiple invasion on right to privacy. All right? So what this extract of book is saying? So this extract of book is throwing light over what? Throwing light over privacy. And our topic is also what? Privacy. So when we are writing a topic on privacy, when we are writing an essay on privacy, we have simply put an extract from a book that is 1984, and in this way we have started this introduction. All right? So if you are poem lover, or if you know many poems, you can start your introduction even with poem. Poem अगर आपको नहीं भी आता है,
आप टाइम के साथ, वक्त के साथ हिंदू में आप जो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, कई सारे पोएम्स आपको वहाँ पर देंगे। पोएम का मतलब पोएम रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ फेमस लाइन्स उठा लीजिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, आपके इंट्रोडक्शन को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। जैसे कि search of for truth can only be a spiritual problem. So search of truth can only be a spiritual problem. What does it mean? It simply means that why this is a spiritual problem. So this quotation says that to search any truth, to find any truth, we should not go here and there. We should not go to college. We should not go to some tutor. We should not go to some kind of books. But we can find the truth by sitting at a place, by thinking. केवल सोच करके हम चीज़ों को ट्रूथ के पास क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्धा। सो गौतम बुद्धा गॉट द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म नॉट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बट बाय हिमसेल्फ। सेम इज एप्लीकेबल फॉर Mahatma Gandhi, same is applicable for Socrates. So many great people were there on our planet who have got the truth by what? By the process of meditation. अपने आप एक बैठ करके, इसलिए कहा है कि सर्च फॉर ट्रूथ कैन ओनली बी ए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। आपको बैठ के एक जगह सोचना है और आप ट्रूथ के पास पहुंच सकते हैं। So let us see this poem. It's a very famous poem by Rudyard Kipling. It says, I keep 6 honest serving men. Their names are what and why, when and how, where and who. I send them over land and sea, I send them east and west, but after they have worked for me, I give them all a rest. Rudyard Kipling. So Rudyard Kipling का कहना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके 6 लोग हैं जिनको बुलाता है। वो लोग कौन है? वो है what, why, when, how, where and who. That means he takes any decision by the process of reasoning. क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ. So this can set the tone of debate that you are going to write on reasoning. You are going to write on rationality, because rationality, reasoning, logic, that can only find what? ट्रूथ। अब एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया तुमको एक पोएम का, लेकिन एक बार तुमको ये पोएम समझ में आ गया तो इस पोएम को, इस लाइन को आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर क्वेस्ट फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज, इस तरह की चीजें आएगी तो वहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको टाइम के साथ 1 साल 2 साल में जब भी आपका मेंस एग्जामिनेशन हो, आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे पोएम्स को उठा करके लिखना है। और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कैसे मेरे दिमाग में ये आएगा। आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कभी ना कभी आपके मतलब इस जर्नी में कई बार ऐसे ऐसे पोएम्स क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ सम नेगेटिविटी, स्टार्ट विथ सम एप्रीहेंशन, स्टार्ट विथ सम ओपिनियन, परसेप्शन। यानी एक बिलीफ सिस्टम के साथ आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम मैं क्यों बोल रहा हूँ, या फिर मैं कोई कॉन्क्रीट बात क्यों नहीं कर रहा हूं? आई एम सेइंग इट टू बी अ बिलीफ सिस्टम बिकॉज इफ वी बिलीव समथिंग देन ओनली वी कैन डिस्कस दोज थिंग्स इन आवर फर्दर पैराग्राफ। अगर मैं फैक्ट लिख दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, सो इसमें एक्सप्लेनेशन की जगह नहीं रहेगी। बट अगर मैं ये लिखूं मेनी पीपल बिलीव दैट नरेंद्र मोदी शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो यहां पर मैं आगे आर्ग्यूमेंट देने वाला हूं व्हाई नरेंद्र मोदी शुड बी प्राइम मिनिस्टर और व्हाई ही शुड नॉट बी प्राइम मिनिस्टर, एंड देन आई विल कंक्लूड। सो परसेप्शन, ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम, ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, उस स्कॉलर को ऐसा लगता है, इससे अगर आपने चीजों को स्टार्ट किया तो यह भी एक तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, कैन दिस बी next big thing for India? I guess this is question of UPSC 2016, but this is a question of UPSC. I am confused about here. So when we are going to start this particular topic, introduction, let's create apprehension. लोगों को लगता है इंडिया में कभी टूरिज्म आएगा ही नहीं। लोगों को लगता है क्यों नहीं टूरिज्म आएगा? Let's see. Some people believe that India cannot become a tourist destination. They cite various factors behind this, like
lack of uniform culture, language barrier, geographical diversity, lack of infrastructure, law and order issues, lack of governance policy, pollution. This section of people have firm belief that tourism sector in India can never match international standards, and so it's futile to think over this sector. पूरा अपने इस इंट्रोडक्शन में क्या लिख दिया, इंडिया कभी हो ही नहीं सकता टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जोग्राफिकल बैरियर्स है, लैंग्वेज बैरियर्स है, रिलीजियस बैरियर्स है, एकदम डाउट आपने क्रिएट कर दिया। तो अब आने वाले पैराग्राफ में आप उन डाउट्स को एक एक करके एड्रेस करेंगे। जोग्राफिकल बैरियर, क्या ये बैरियर है? फिर आप एक्सप्लेन करें नहीं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो इंडिया की ब्यूटी है, वो इंडिया का स्ट्रेंथ है फॉर टूरिज्म। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। व्हेन पीपल फ्रॉम पंजाब वुड लव टू गो टू केरला, people from Kerala would love to go to Delhi. All right. So then in the subsequent paragraph, you will explain that these diversities, they are basically not weak points of India, but they are strength. All right. Raise some questions. कुछ ना कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए, इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। आप कहीं पर पोडियम पे भाषण देने के लिए गए, आपने भाषण देना चालू कर दिया, क्या इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल सकता है? क्या बांग्लादेश इंडिया का पार्ट वापस से बन सकता है? तो आपने जैसे ही क्वेश्चंस रेज किए तो आपने लोगों के मन में एक डायरेक्शन प्लांट कर दिया। यू हैव प्लांटेड अ डायरेक्शन that now I will address these issues, that can Bangladesh be part of India? Can India and Pakistan become friends in future? So I have planted a direction, I have planted a theme, and now I will keep on discussing my essay in this particular direction. So questions raise करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन का, क्योंकि आप सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रेज कर दीजिए और उन्हीं क्वेश्चंस को फिर सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में क्या करते जाइए, आंसर करते जाइए। आपका 1000 वर्ड्स 12 वर्ड 100 वर्ड का ऐसे जो है पूरा हो जाता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हैज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड? सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, नाम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्या इसने अपना रेलेवेंस खो दिया है? इट्स अ सिंपल ऐसे टॉपिक। Now you are going to raise series of questions. NAM is said to be child of its time. The idea was born in context of Cold War between two superpowers, that is USA and former USSR. With its birth, NAM attracted the entire world, and the hegemony of alternative world order impacted the third world most. However, disintegration of USSR questions the relevance of NAM. Today there are many relevant questions in this regard. पहले अपने क्वेश्चंस का एक रूपरेखा बता दिया, फाइन। डायरेक्ट भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे कि सीधा क्वेश्चन से ही पहले स्टार्ट कर दिया, पहले उस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड बता दिया। लाइक एआई पे क्वेश्चन रेज करना है, सो एआई को पहले एक्सप्लेन कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी in which automized system works. With introduction of AI, several questions have come into the mind of people. Will AI impact the job opportunities in India? इस तरह से करना चालू किया। अब यहाँ से क्वेश्चन करना चालू करते हैं। Has NAM lost its relevance? What is the role of NAM in debate of multipolar world? What role will NAM play in new Cold War? How declining US hegemony is going to impact NAM? What NAM has to offer in context of rising and assertive China? What will be the role of new India in NAM? Is NAM 2.0 a substantive idea? So in this series of questions, you have given direction to your essay that you are going to discuss here role of China. You are going to discuss here NAM 2.0. You are going to discuss here declining hegemony of US. You are going to find the quality of relevance of NAM in context of multipolar world. So you have raised multiple questions, and in the subsequent paragraph you are going to answer all these questions, and this will complete your entire essay. So this is a very good way
to start any essay. Now let us move to our last approach to introduction. This is essay, this is an approach which is, I would say, most easiest approach. क्योंकि since you will appear for essay after qualifying prelims examination, and since you have already qualified prelims examination, so obviously you are someone who have a very good command over current affairs. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि essay के किसी टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई जो है आप लिंक न्यूज़ को लिंक नहीं. हैप्पीनेस पे क्वेश्चन आ गया, केरला में एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया गया था, पुलिस वालों के लिए हैप्पीनेस के कोर्स लॉन्च किए गए. नॉलेज पे क्वेश्चन आ गया, नॉलेज इकोनॉमी से उसको लिंक कर दिया. इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत तरह के न्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन आया, बहुत तरह के न्यूज़ आपके दिमाग में वहां पर जो है आ सकते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जांपल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ और रियलिटी. सो वी कैन राइट एनी रिसेंट न्यूज़ विथ रेस्पेक्ट टू दिस. वेस्ट बंगाल वर्सेस दिल्ली, तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली, बहुत सारी चीजें हैं. एक जेनरिक मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है. Recently, Supreme Court of India has reaffirmed its judgment of S.R. Bommai case and declared that federalism is basic structure of constitution. This has once again led a fresh debate in the country. It has led to many questions. Is Indian federalism a reality? How Indian federalism is unique and different? Which model of federalism does India follow? Indian federalism is a cooperative federalism or competitive federalism. You can start with recent news, laws, ordinance, कमीशन रिपोर्ट्स. जस्टिस काटजू आज रेलेवेंट नहीं है, पर जस्टिस काटजू का मैंने नाम क्यों लिखा? जस्टिस काटजू जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बोला करते थे. फाइन, इनके अपने व्यूज थे इसको लेकर, जुडिशियल रिव्यू को लेकर के. सो कहने का मतलब है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बहुत सारे न्यूज को लगा करके, रिसेंट न्यूज को लगा करके एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो है आप वहां पर लिख सकते हैं. So that's all. So different ways to write introduction. The first is start with some quotation. Second, start with some extract of book. Third, start with some poem. Then start with some apprehension. Then start with some questions. Or at last, start with some recent news. So I hope that now you can write a good introduction, ideal introduction. In the next class, we will see how to write a good conclusion. Thank you.